کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے اوپر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا. قسم کے بارے میں سب سے پہلی تو بات یہ مد نظر رہنی چاہیے کہ کوئی شخص بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس شخص میں تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قسم کھانے کا تو وہ قسم نہیں کھائے مگر صرف اور صرف اللہ کے نام کی. ہمارے ہاں لوگ ماں کے نام کی قسم کھاتے ہیں، اور میں تمہارے سر کی قسم کھاتا ہوں کہ مجھے ایسا ہوا ہے، مجھے میری ماں کی قسم، میرے ابا کی قسم. اور بعض لوگ کھانا کھاتے ہوں تو وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں رزق ہے. ٹھیک ہے، قبلہ رخ بیٹھے، ٹھیک ہے، قبلے کی طرف ایک سمت، وہ اس کی نسبت جو اللہ کی طرف ہے، لیکن ماں سوائے اللہ کے وہ کوئی شخص اور ذات اور ہستی اور بستی ہے، اس کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. ماں سوائے قسم ہوگی تو صرف اللہ کی ذات کی یا اس کی صفات کی، اس کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی قسم کھائی جا سکے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ منع کر دیا اس سے، من کان حالفا فلیحلف باللہ. تو قسم کھانے والے کو یہ اعتبار رکھنا چاہیے، اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کا تم سے مواخذہ نہیں کرے گا. لغو قسم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی بعض گفتگو کے اندر یا ان کے جملوں کے اندر، محاوروں کے اندر، سینٹنسز کے اندر وہ ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ قسم سے میں ایسا کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ایسا کہہ، یعنی وہ ارادتاً، نیتاً، قصداً قسم نہیں کھا رہے ہوتے، وہ محاورتاً اپنی زبان سے قسم کھاتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان لغو قسموں کے اوپر پکڑ نہیں تم سے کرے گا. وہ قسمیں کہ جو تم نے ارادتاً کھائیں، ان قسموں کی جو ہے وہ تم سے اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا، سوال کرے گا. تو پھر اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کبھی ایسی کوئی بات کی تو آپ علیہ السلام کو یہ لگا کہ اس بات کے اوپر حلف لے لیا ہے یا قسم دے دی ہے، تو اگر لگا کہ کبھی یہ جس بات کے اوپر قسم کھائی گئی ہے اس کے مخالف یا اس کے متضاد کوئی راستہ بہتر ہے اس چیز سے کہ جس کے اوپر قسم کھائی گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو ختم کر دے اور اس دوسرے راستے کو اختیار کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے. کفارہ کیا ہے؟ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ. جو تم اوسط ایوریج کھانا کھاتے ہو نا، یہ کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو، 10 مسکینوں کو متوسط کھانا کھلانا. متوسط کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر ایک شخص 2 روٹیوں سے 3 روٹیوں سے اس کا پیٹ بھر سکتا ہے، ساتھ ایک پلیٹ سالن وہ لے لیتا ہے یا پانی کا گلاس آپ اس کے ساتھ رکھیں، تو آپ اس کا کاسٹ نکال لیں، اس کی 250-300 روپے میں یہ تقریباً بنتا ہے ایوریج کھانا. تو اس قسم کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا، یہ ترتیب ہے. سب سے پہلے کھانا کھلانا ہے من اہلیکم او کسوتہم، یا پھر تم ان 10 لوگوں کو کپڑے پہنا دو. فتحریر رقبۃ مؤمنہ، یا پھر یہ ہے کہ کسی مومن غلامی کی حالت میں اگر کوئی مومن ہو تو اس کو غلامی سے آزاد کروا دینا، یہ قسم کا کفارہ ہے. تو چونکہ ہمارے ہاں غلامی کا تصور نہیں ہوتا ہے، یہ قرآن کریم میں یہ بعض جگہ پہ کفاروں کی صورت میں یہ آیا ہوا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کفارہ ادا کرنا چاہے تو وہ کسی قیدی کو کیا ہے غلام کو آزادی دلا دے. ہمارے ہاں چونکہ یہ تصور ورلڈ وائڈ بھی یہ ختم ہو گیا ہے، اس وقت نہیں ہے، تو لہٰذا اگر کوئی اس کی ماڈرن یا کسی صورت جس میں یہ اپلائی ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اگر کسی ایسے شخص کو جانتے ہوں کہ جو بے گناہ قید کے اندر ہے، ظلمن جبرن استحصالن کسی صورت میں کوئی قید کیا ہوا شخص ہے، تو آپ اگر اس کو بیل لے کے دے سکتے ہیں، اس کی ضمانت کروا سکتے ہیں، اس کو اس کے پھنسے ہوئے جس مقدمے میں ہے تو اس سے آپ اگر اس کو بری کروا سکتے ہیں تو یہ آپ کا اسی حکم میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا. عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا، اے عیسیٰ تو اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے اوپر چنا ہوا دسترخوان نازل کرے. تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اس قسم کا مطالبہ نہ کرو. اس لیے کہ رب کی طرف سے جب حجت تمام ہو گئی پھر کسی نے نافرمانی کی تو پھر تمہارے پاس کوئی جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا بہانہ اور ایکسکیوز نہیں ہوگا. یعنی جب تک تو اللہ تعالیٰ مہلت دیے رکھا، جب تک
जब किसी शख्स ने मोजजा तलब कर लिया और मोजजा तलब करने के बाद अंबिया के हाथों मोजजा सादिर हो जाए, फिर वो ईमान ना लाए, इताअत और इत्तिबा ना करे, तो फिर अल्लाह के अजाब ही आते हैं, फिर उस चीज से कोई टाल नहीं सकता है। उसके ऊपर बेशुमार आप दलीलें दे सकते हैं। सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा है। उन्होंने कहा जी कि 10 माह की हामला ऊँटनी निकल आए पहाड़ से। पहाड़ तो ऊँटनियों को जन्म नहीं देते हैं, तो वो ऊँटनी आई, फिर उन्होंने उसकी कोंचें काट डाली और उनके ऊपर 3 दिन के बाद अजाब नाजिल हुआ। इसी तरह कौम शुआइब अलैहिस्सलाम, जनाब लूत अलैहिस्सलाम की कौम, इसी तरह ये ईसा अलैहिस्सलाम ने, इन्होंने बहरहाल ये कहा कि आप बस ये हमें पूरा करके दिखाएं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। अल्लाह तू हमारे ऊपर, इन लोगों के ऊपर दस्तरखान नाजिल कर दे जो तेरी तरफ से पहले और बाद में आने वाले सब लोगों के लिए एक हुज्जत, एक दलील बन जाए, ताकि किसी के पास नाफरमानी करने का कोई रास्ता बाकी ना रहे और कोई जवाब बाकी ना रहे। दस्तरखान नाजिल हो गया। दस्तरखान नाजिल होने के बाद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, अब इन लोगों को अल्लाह ताला ने मना किया था कि तुमने यहां से उठाना नहीं है, लेकिन वो बनी इसराइल की एक बड़ी हरकत मशहूर थी, ये खाते भी थे और जेब में भी डाल के ले जाते थे। आज हमारे यहाँ बाज लोग होते हैं ना, वो माशाल्लाह पहले खूब हाथ साफ करते हैं दस्तरखान पे और फिर बैग में डाल के तो वो ले जाते। तो हम उन तो आम तौर पे लतीफ़ा कसते हैं कि ये बनी इसराइल की हरकत है, तो वो इसका ये माना था। फिर अल्लाह ताला ने एक क़यामत का अहवाल जिक्र किया कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी बारगाह में खड़े करेंगे क़यामत के दिन और पूछेंगे, अअंत कुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, ऐसा क्या तुमने इन ईसाइयों से कहा था कि तुम मेरी और मेरी अम्मा मरियम की उलूहियत के कायल हो जाओ, तुम हम दोनों को रब बना लो? तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मा कुल्त लिन्नास, अल्लाह ताला मेरे तो जो लायक ही नहीं, मैं वो कैसे कह सकता हूं? मैं इसलिए थोड़ी मबूस किया गया हूं कि मैं लोगों को अपनी माबूद होने की तरफ या अपनी अम्मा को रब बना के पेश करूं और हम अपनी इबादत के लिए लोगों को बुलवाएं। मेरे ये लायक नहीं है और मैंने ये नहीं किया है। इनसे इलाने बरात कर देंगे जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम। गोया ये कुरान मजीद की ये मुकाम आज भी ईसाइयत के लिए एक बड़ी बय्यन तौर पे ये एक ऐसी दलील और उनके लिए वापस आ जाने का एक बड़ा जो है वो अहम आपके लिए कि नुक्ता है कि वो अपने शिर्क से तायब हो जाएं कि जो उन्होंने अपने जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद बना रखा है, अकीदा तस्लीस के कायल हैं। फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते हैं कि अब ईसा अलैहिस्सलाम फिर एट द एंड क्या करेंगे कि इनसे, इनके लिए अल्लाह ताला से रहम की अपील करेंगे। अल्लाह इन तगफिर लहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तगफिर लहुम इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, तू अगर इनको अजाब देगा, इनको मारे पीटेगा, अजाब देगा, सजा देगा, तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू इनको रहम कर देगा तो तू गालिब हिकमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है सही मुस्लिम में, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत आयशा कहती हैं सही मुस्लिम में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस आयत की तिलावत करने को पहुंचे, रात का क़याम कर रहे थे, तहज्जुद पढ़ रहे थे, इस आयत पे पहुंचे तो ताफ तुलुए फज्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात इसी एक आयत को पढ़ते रहे और रोते रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से इनके लिए रहम की अपील करेंगे। और खुद अपने बारे में भी ये एहसास हुआ कि मैं अपनी उम्मत के बारे में इन लफ्जों से रहम की अपील करूंगा कि अल्लाह तू इनको अजाब देगा तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू इनको माफ कर देगा तो तुझे कोई सवाल करने वाला नहीं, तू गालिब हिकमत है। सूरह अनआम शुरू होती है चुपाए, इसका बयान अनआम चुपाए जानवर जो होते हैं इनका बयान में, इनके अंदर अल्लाह ताला ने कुर्बानी के जानवरों का बयान रखा है। फिर ये सूरत पूरी की पूरी तौहीद से और तौहीद की जो है वो जिंदा एक दुनिया के ऊपर मौजूद निशानियां है ना, उन निशानियों से भरी पड़ी है। अल्लाह ताला ने सवाल किया है और सवाल करने के साथ मुख्तलिफ मिसालों के साथ जो है इस तौहीद को और अपने वजूद को जो है वो साबित किया है। अल्लाह ताला कहते हैं, एक जगह फरमाया, मा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला हुवा यअलमुहा, कि दरख्त से गिरने वाला एक पत्ता नहीं गिरता मगर वो अल्लाह के इल्म में होता है।
इंडिया के एक बहुत मारूफ आलिम दीन है मुफस्सिर अल्लामा हाफिज जलालुद्दीन कासमी हफिज़हुल्लाह, वो इस आयत की तफसीर करते हुए इसके ऊपर तबसरा करते हैं कि क्या अल्लाह का इल्म है कि दुनिया में हजारों की तादाद में जंगल हैं और उनके अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में दरख्त हैं, और कभी मौसम की खुनकी होती है, अंधेरी रातें होती हैं, और उन अंधेरी रातों में कितने ही पत्ते हैं जो पतझड़ के मौसम में दरख्तों के ऊपर से गिरते हैं और वो जमीन के ऊपर आ पड़ते हैं। क्या अल्लाह का इल्म है कि जो पत्ता गिर रहा है अंधेरी रात में, धुंधलों के मौसम में, रातों की स्याही में वो पत्ता गिरता है, जिस जगह से टूट के गिरता है गिरने वाले पत्ते को भी जानता है, और जिस जगह से टूट के गिरा है वो उस जगह का भी इल्म रखता है। तो वो कहते हैं कि अगर एक दरख्त से गिरने वाले पत्ते का इल्म अल्लाह को है, तो अगर मफलूकुल हाल, कोई मजबूर, कोई मकहूर, कोई जिंदगी से तंग आया हुआ शख्स, मसाइब और मुश्किलात का घिरा हुआ शख्स अगर अपनी आंख से एक आंसू बहा दे, तो क्या अल्लाह के ये इल्म से बाहर होगा? अल्लाह क्या इसको देखता नहीं है? अल्लाह देखता है, शर्त यह है हम उसकी तरफ आए तो सही। हमने तो वो ऐसे अकीदे बना रखे अल्लाह की कसम कि जिन अकीदों से शिर्क की बदबू आती है। साड़ी सुनदा नहीं ते एना दी मुड़दा नहीं, साड़ी एना आगे ते एना दी ओ दे आगे। अहले मक्का का भी यही अकीदा था, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा। हम इनकी इबादत नहीं करते, हम तो इनको इसलिए पुकारते हैं ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं, हम इनके आगे इल्तिजा करते हैं और ये हमारी अल्लाह के आगे पुकारते हैं। तो भाइयों, इस किस्म के ये जो बातिल अकीदे हैं, अल्लाह ताला तो कह रहा है, अल्लाह के रसूल जब मेरे बंदे आपके मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कहें इन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ये कि सिर्फ आपका रब सुनता है, बल्कि सुनने के बाद पुकारने वाले की पुकार का जवाब भी देता है, कबूल भी करता है। फिर अल्लाह कहते हैं लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। वो लोग कि जिन लोगों ने अपने ईमान को जुल्म के साथ खल्त मल्त नहीं किया है, जुल्म से मुराद शिर्क है, उलाइका हुम मुहतदून, ये वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं, ये अमन वाले लोग हैं। एक जगह अल्लाह कहते हैं सूरतुल जिन में वल्लव इस्तकामू अला तरीकति लस्क़ैनाहुम मान गदका, अगर ये अल्लाह के साथ शिर्क ना करते तो हम इनको जमीन से मीठा पानी पिलाते, जमीन से मीठा पानी इनको निकाल निकाल के पिलाते। कभी जाओ चूनिया पत्तों की तरफ, हम वहां गुफ्तगू करते हुए मैंने कहा अगर तुम दीन के ऊपर इस्तिकामत इख्तियार कर लो, शिर्क से बच जाओ, तो अल्लाह खारे पानियों को पीने वालों, अल्लाह तुम्हें जमीन से मीठे पानी निकाल के पिलाए। जो शिर्क को छोड़ना, इसके लिए बहरल दलील है। एंड पे अल्लाह ताला कहते हैं ला तुदरिकुहुल अबसार, बल्कि इससे पहले कहा अल्लाह तो वो है कि जिस अल्लाह ने वलम तकुल्लहु साहिबतुन, उस अल्लाह की कोई बीवी नहीं है, उसका कोई खानदान नहीं है, वो लतीफ है, वो खबीर है, वो अलीम है। और फिर कहा कि सारी दुनिया को वो देखता है, लेकिन दुनिया भर की आंखें उस अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती। वो सबको देखता है, लेकिन दुनिया की कोई आंख अल्लाह को नहीं देख सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने यह घड़ रखा है, वो मेराज की रात रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम, वो जो सूरत नजम में आता है फकान काब कौसैन औ अदना, वो दो कमानों की तरह, कमान के फासलों की तरह रसूलुल्लाह करीब हो गए। तो भाई वो पसे पर्दा थे। कौन सी ऐसी बात है जो 1450 साल बाद आपके पास दलील है? वो फिर कव्वालों ने कवालियां गा रखी होती हैं, यार ने यार नू रज रज तकिया ते ना रिया विच कोई पर्दा। सुभान अल्लाह, क्या अकीदे की दलील है। जैसे हमारे मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, उनसे पूछो इसकी क्या दलील है, वो कहता फलां मूवी आई थी इसके ऊपर तो उसके अंदर ऐसा था। ठीक, तो क्या कव्वालियों के अंदर से हमारा अकीदा साबित होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा सैयदा उम्मुल मुमिनीन अफीफा कायनात आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वर्जा फरमाती है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में है, मन अखबरा का अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकद रआ रब्बहु फकद कज़बा। तुझे जो शख्स ये खबर दे कि मेराज की रात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के चेहरे की ज़ियारत की है, वो बंदा झूठ बोलता है। अब बात हजरत आयशा की मोतबर है, ये 1450 साल बाद आने वाले लोगों का अकीदा मोतबर है।
हम उन्हीं से लेंगे ईमान भी, अमल भी, अकीदा भी और दलील भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फ़हम और शऊर अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।